बारे में एजुकेशन है, इंडस्ट्री है, इन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और इसी के लिए मैं अ, सभी पार्टिसिपेंट से एक गेस्ट हैं, अभी और जुड़ रहे हैं जो ऑनलाइन से हैं, बाहर से भी हैं। 5 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट और करिएगा। Good afternoon, everyone. Today, this webinar is organized by SN Todi College, Rajasthan, in association with Research Foundation of India. Respected participants and speaker, today we are going to organize international webinar on issue challenges on global reform presents global crisis. I would like to welcome all chapter heads, all core committee members, North Board members, South Board members, West Board members, and Central Board of India members, Research Foundation of India. I would like to welcome our Honorable Chairman, Shri Krishna Chaharji, SN Todi College, Rajasthan, Chairman of Research Foundation of India, Dr. Saurabh Jain, Vice President of Research Foundation of India, Dr. Ashok Kumar Gupta ji, Professor Ajay Kumar Jain, Central Board of India, President, Research Foundation of India, Dr. Radheshyam Godra ji, Organizing Secretary. Now, Dr. Mahesh Singh Rajput ji, the Principal, SN Todi College. Now, yeah, ma'am. Now, Dr. Mahesh Singh Rajput ji is with us,
and Yeah. Dr. Atul Dubey ji, the RDVV College, Jabalpur. Please, EC member. Now I would like to Dr. Krishna ji. Now I would like to call Dr. Krishna Chahar ji. Please, please continue. Dr. Krishna Chahar ji, Chairman SN2D College. Please. शायद 4 साल से मैडम कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर महेश सिंह जी राजपूत जी को अपन बुलाते हैं। Please, Dr. Mahesh Singh Rajput ji, please welcome. He is principal of SN2D College, Rajasthan. Please, sir. Yeah, thank you, ma'am. Yeah. Good afternoon, ladies and gentlemen. I, Dr. Mahesh Singh Rajput, extending welcome and warmly thanks the organization of this important international workshop on the theme Issues and Challenges for Economic Reform during Recent Global Crisis, being organized by the Sri Shandanath PG College, Gudagodji, Junjunu, Rajasthan, in association with Research Foundation of India, World Virtual Conference Forum, and sponsored by World Federation of Science and Technology, California, for giving me the privilege of welcome and addressing you all. For me, it is an honor and a pleasure. It has time that such an event took place to highlight the remarkable contribution which issues and challenges related to economic reform during the recent global crisis makes in so many areas of our lives. A glance through the list of presentations planned for the 1.5 hour sessions reveals the amazing diversity of this topic. Economic reform lays impact on different sectors and services like finance, human health, agriculture, industry, energy, natural resources, FMCG, management, and many other areas. There is a great demand for our services. Ladies and gentlemen, international workshops such as the provide a valuable opportunity for research scientists, industry specialists, and decision makers, businessmen, and others to share experience. I am grateful to the many experts who have come to share their knowledge. The session. I also welcome the many participants, representative of the government, industry association, and the finance sector NGO who are joined us. I am sure you will have fruitful and rewarding exchanges in the next 1.5 hour session. I wish you every success with the important conference, and I look forward to learn about the outcome. Thank you. Over to Godara sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to call Chairman Research Foundation of India, Dr. Saurabh Jain. Please brief us the introduction about Research Foundation of India. Yeah. Thank you, Dr. Kalyani. As we know very well, today we are going to be organize an international webinar on global crisis after lockdown in association with SN2D College, Rajasthan. First of all, I would like to welcome Chairman Dr. Krishna Chahar ji, Chairman SN2D College, Rajasthan. Dr. Mahesh Singh Rajput ji, Principal SN2D College. Our honorable speaker, Dr. Atul Dubey ji, EC member, Rani Durgavati University, Jabalpur, Madhya Pradesh. Dr. Ashok Kumar Gupta ji, Vice President, Research Foundation of India. Professor Ajay Jain, President, Central Board of India, Research Foundation of India.
Dr. Radheshyamji Godara, organizing secretary of this conference, all eminent speakers, and all core committee members of Research Foundation of India. As we know very well, at the time of COVID-19, all countries, including India and all universe countries, is facing the problem related to financial issues. So we are going to be organize this webinar for global crisis reforms in association with and jointly organized with SN Todi College. Thank you very much, our honorable speaker and our officers of Research Foundation of India. Welcome. Over to you, Dr. Kalyani. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, Dr. Saurabh Jain. Now I would like to call Dr. Ashok Kumar Gupta ji, Vice President of Research Foundation of India. He is from Boston, USA. Please welcome, sir. Hello, everyone. I am Professor Dr. Kumar Gupta. Currently, I am residing in Boston, USA. I am honored to be invited in this online international workshop on issues and challenges for during recent global crisis. Today's resource person for the day is Dr. Atul Dubey, and he will discuss regarding behavior, finance, economic changes and development, labor reform, supply chain management, and industrial development, etc. Congratulations for an excellent online international workshop with an amazing program and great speakers. You did a great job. I wish to congratulate you for the great success of the workshop. It is a splendid event both in terms of intellectual quality and social gratification. Starting from March, the government of India ordered a nationwide lockdown, limiting movement of the population as a preventive measure against the COVID-19 pandemic. The lockdown restricted people from stepping out of their homes. Even educational institutions, industrial establishments, and hospitality services were also suspended. But as we know that the show must go on, so we were forced to go for virtual events. To allow event organizers, speakers, attendees, and sponsors to interact remotely through a virtual platform. While webinars and virtual conferences tools have been around for a while, innovating approaches and tools are quickly emerging to more closely align in-person going to virtual channels. A virtual conference is an interactive online event that brings together a group of people with similar interests or expertise so that they can learn from one another, similar to the live conferences. I'd like to thank to management and staff for organizing such a wonderful event with the help of RFI for enhancing research work in the country. I would like to thank Dr. Krishna Saha Sir, Chairman, SN Todi College, Rajasthan, Dr. Mahesh Singh Rajput, SN Todi College, Rajasthan, Principal, Dr. Saurabh Jain, Chairman, Research Foundation of India, Dr. Radheshyam Godara ji, organizing secretary of this work event. A special thanks to the resource persons for being part of RFI, and thanks to all RFI members along with participants. I look forward to exploring further adventures of collaboration and engagement between the SN Todi College and RFI. Thank you again for inviting me to the conference. It was a wonderful experience for me. The level and diversity of discussion is going to be outstanding. You have just the right mix of subjects, people, and time as per requirement. Thank you again. Thank you. Now we heard about Dr. Gupta. We heard from Dr. Gupta. Thank you so much, sir. He is a very good assessor in this lockdown.
We had around 70 webinars with Dr. Gupta. Thank you so much for your support, sir. Now I would like to call Professor Ajay Jain ji, President of Central Board of India, RFI. Please welcome, sir. Thank you so much, ma'am. Organizer रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया और कॉलेज से जुड़े सभी पदाधिकारियों को, डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल सर को, सभी को मेरा नमस्कार। जो जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, सभी की वो समस्या है, सभी की वो सोच है और सभी के लिए आवश्यक है। तो अतुल सर जो इसके ऊपर बोलने वाले हैं, सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और इस विषय पे काफ़ी उनका काम किया हुआ है। उम्मीद है आज बहुत कुछ सीखने को मिले। सो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू ऑल ऑर्गेनाइजर्स। अतुल सर, रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कंटिन्यू बहुत सारे वेबिनार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आने वाले समय में और एफडीपी भी होने वाली है, तो आप सब में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारा ये कार्यक्रम, हमारी ये गतिविधियाँ सभी के साथ मिलकर इसी तरह चलती रहेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Professor Ajay Jain ji. Now, I would like to call Dr. Atul Dubey ji, EC member. He is our most awaited speaker. He is a subject counselor in MBA Indira Gandhi National College, National Open University, Jabalpur. He is nominated as government body member in various affiliated college in Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur. Central Superintendent in Guru Nanak Mahila Mahavidyalaya, Jabalpur, and he has a membership in means professional membership in lifetime membership in Jabalpur Management Association. He is member Indian Commerce Association, life member in South Asia Management Association, member in Rotary Club Jabalpur, and today we are going to announce the lifetime membership in Research Foundation of India. Most welcome, sir, in the Research Foundation of India Core Committee. We all are most means waiting for you to hear you. Please, sir, guide us. Dr. Atul Dubey ji. Thank you, madam. Namaskar. Namaskar, sir. Please continue, sir. Online international webinar, issue and challenges for economic reform for during global crisis. In this topic, I welcome Dr. Krishna Chaharji, Chairman, S.N. Todi College, Rajasthan. Dr. Saurabh Jain, Chairman, Research Foundation of India. और मैं तो ये कहूँगा कि सौरभ जी ने बहुत ही कम समय में इतनी ऊंचाइयों को पाया है, इसके लिए वो उनकी मेहनत सबके बीच में सामने है। डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट, रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर राधेश्याम गोद्रा जी, डॉक्टर A.K. जैन, प्रेसिडेंट, सेंट्रल बोर्ड, रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और प्रिंसिपल महेश सिंह जी, और रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट। बड़ा हर्ष का विषय कि हम इस विषय के बीच में आप सबके सामने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम इस क्राइसिस के पहले देखें तो बहुत सारी समस्या हमारे सामने थी, और साथ में जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, और इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी उसके पहले और बाद की कुछ सिनेरियो की बात करूंगा।
कुछ डेटा के बारे में, कुछ डेटा एनालिसिस करूंगा, कुछ बातें डेटा के माध्यम से आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो बेसिक पार्ट है वो है हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी के जो 6 पार्ट जो मैं अकॉर्डिंग टू मी मैंने उसे अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी के 6 पार्टों में सबसे पहले ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज आता है। जब हम ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें साइज, लोकेशन, और अगर हम लोकेशन पे बात करें तो हम विश्व के देशों में हम 7वां स्थान रखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बाउंड्रीज, जो हमारी बाउंड्रीज हैं जिनमें से हमारा उत्तर में हिमालय हमारा मुकुट के रूप में जो हमें सोवियत और चाइना से अलग करता है। दूसरा, अगर हम दक्षिण में जाएं तो हमारा हिंद महासागर, और अगर हम पूर्व में जाएं तो बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी, साथ में पश्चिम में अगर हम जाते हैं तो पाकिस्तान। इस तरह से हमारे आसपास की जो लोकेशंस, बाउंड्रीज हैं वो इस तरह की है। दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी है क्योंकि जब कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनमें कैपिटल बेस्ड कंट्री और लेबर बेस्ड कंट्री, मतलब कहने का यहाँ पर जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में पूंजी होती है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वो तकनीकी को ज्यादा इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाते हैं। मगर जिन अर्थव्यवस्था में पूंजी की मात्रा सीमित होती है तो वो अपने मानवीय संसाधनों के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके जस्ट बाद जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज जिसमें से कोयला, अभ्रक, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऐसे बहुत से सारे एलिमेंट्स आते हैं। फिर आता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज जिसमें हमें बहुत तरह के फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी मिलते हैं। वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज जिनमें हम ऐसा कहा जाए तो परमाणु हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज इसमें हम लेकर चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज मिलकर लगभग इकोनॉमी को तय करते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जा सकती है। साथ ही अगला जो पार्ट है वो है एग्रीकल्चर और इरिगेशन। एग्रीकल्चर के मामले में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री दांतेवाला जी बोलते हैं कि कृषि वो क्षेत्र है कि कृषि क्षेत्र की सफलता हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलता का द्योतक है। लेकिन वहीं उसका विपरीत कहते हैं कि अगर कृषि क्षेत्र विफल होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी तरह से उससे प्रभावित होती है। साथ ही जो सिंचाई, इरिगेशन, इसके उपकरण, औजार, कृषि जो क्षेत्र है ये भी अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे क्षेत्रों को हमसे जोड़ता है। इसके साथ साथ जो हमारा अगला पार्ट जो 5वें नंबर पे है वो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज के बारे में मैं इतना संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही है अब जो हमारे 3 पार्ट को टच करता है। वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट, वो है हमारा प्रोडक्शन और वो है हमारी इनकम्स। और इनकम अगर जनरेट होती है तो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ने का लाभ मिलता है। और इसके अगले पार्ट में आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमारी सड़क, जितने भी तरह के जो हमारे रास्ते हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल हो, वायुयान हो, जल मार्ग हो, इनके डेवलपमेंट में भी बातें आती हैं। अब इन सारे 6 सूत्रों को
जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है CSO, इसने दोबारा इन्हें 3 पार्टों में बांटा है, जो आपको सेक्टर दिख रहा होगा नेक्स्ट स्लाइड में। प्राइमरी सेक्टर, दूसरा पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा पार्ट है हमारा टर्शरी सेक्टर। तो जो मैं बात कर रहा था, ये हमारे 6 जो सोर्सेज हैं, 6 पार्ट थे, उनको पुनः हमने 3 पार्टों में रखा, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंतर्गत आते हैं। अब हम इन तीनों पार्ट में इंडिविजुअली बात करें तो अब हमारी तीसरी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो इंडियन इकोनॉमी के लिए रॉ के रूप में कच्चा माल, हर तरह की व्यवस्था सप्लाई करता है, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज और माइनिंग को हम लेकर चलते हैं। जो हमारी स्लाइड्स, इसके अलावा जो हमारी स्लाइड है नंबर 4, जिसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि सेकेंडरी सेक्टर जो मेनली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स को बिलोंग करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है। और इसके अलावा जो अगली स्लाइड्स है जो मेरी, उसमें टर्शरी सेक्टर को मैंने बताने का प्रयास किया है कि जो इंटेंजिबल गुड्स की बात करता है, जिसमें सर्विसेज आती हैं, जिसमें अटेंशन, एक्सपीरियंस और डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज को हम शामिल करते हैं, कंसल्टेंसी की बात करते हैं। अब मैं आपका ध्यान हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, अगली स्लाइड्स में पॉपुलेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका कुछ क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है, उनको बांटने की कोशिश की है, जिसमें से सबसे पहले जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ विलेजेस, गांव की संख्या जो हमारे भारत में है वो लगभग 5,97,464 के आसपास है। ये गांव की स्थिति है। और गांव में अब हम आगे बढ़े तो इनको डेवलप करने के लिए, जो कि ग्राम स्वराज्य की धारणा थी, महात्मा गांधी की बात की थी, महात्मा गांधी ने बात की थी ग्राम पंचायतों के माध्यम से। तो ग्राम पंचायतें लगभग 2,50,000 हमारी ग्राम पंचायतें यहां पर काम कर रही हैं। और जिलों की संख्या की बात करें तो लगभग इन गांवों में, इन जिला पंचायतों में कुल मिलाकर लगभग 640 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसमें से लगभग 250 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं ऑल ओवर इंडिया जो बहुत ही पिछड़ी अवस्था में है। अभी नहीं, पहले से ही बहुत ज्यादा पिछड़ी अवस्था में थे। और अब मैं जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट में बात कही थी कि हम इन गांवों को, इन ग्रामीण पंचायतों को वाईफाई से, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो लगभग मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं कि लगभग 44,000 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो अभी तक डायरेक्ट वाईफाई से जुड़ पाई हैं। अब इन चारों डेटा पे अगर हम दृष्टिपात करें तो ये समझ में आता है कि 5 लाख के लगभग 6 लाख के आसपास जो गांव हैं और लगभग उनसे भी कम ग्राम पंचायतें हैं, और उनके लिए जो इंटरनेट सुविधा है वो तो लगभग 18% के बराबर है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के सिनेरियो में इंटरनेट सुविधाएं अगर अच्छी है तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और किया भी जा सकता है। अगली जो स्लाइड्स है, मैं ये बताना चाहता हूं कि टोटल पॉपुलेशन को तीन खंडों में मैंने बांटा है कि जो ग्रामीण और शहरी स्थितियों में क्या परसेंटेज है। तो टोटल पॉपुलेशन लास्ट 15 ईयर 2010 जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो लगभग
31% थी। और इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो लगभग रूरल पॉपुलेशन जो है वो लगभग 69% को बिलोंग करता है। इसके बाद हम आने वाले 5 सालों में जाए तो 5 सालों में तो 2015 यही आंकड़ा जो रूरल का 31% था वो अब बढ़कर जो अर्बन का वो 33% हो जाता है, और जो रूरल का 69 था वो लगभग 67% की ओर चला जाता है। यानी 2% का डिफरेंस आता है, कमी आती है, और उसका कारण एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया की अपेक्षा अर्बन एरिया में ज्यादा, ऐसा समझ में आता है। और जैसे ही हम आफ्टर 5 ईयर और आगे बढ़ते हैं 2020 में, तो ये परसेंटेज जो अर्बन का वो बढ़कर 35 हो जाता है, फिर 2% बढ़ता है, और यहां पर दूसरा पार्ट जो रूरल का था वो पुनः 65% पे आ जाता है। और आफ्टर कोरोना क्राइसिस मुझे ऐसा लगता है कि जो 65% रूरल प्रॉब्लम था वो अब बढ़कर सीधा जंप करके 72 और 75% पे आ गया होगा। जो मैंने अभी पॉइंट्स में दिया है कि लेबर रिफॉर्म की आवश्यकता है, तो उस पार्ट पे ये वाली बात आती है। अब यही पॉपुलेशन की बात करें तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं तो स्किल इंडिया और एजुकेशन के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। लेकिन अब हम ऑल इंडिया, अगली स्लाइड में जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019 जो हुआ था उसकी कुछ पोजीशन बताना चाहता हूं आप लोग। वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया 993 है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलेज जो लगभग 39,931 है, और स्टैंड अलोन इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं वो 10,725 के बराबर है। और जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है वो 298 के बराबर है। और अगर इनमें देखा जाए तो इनमें टेक्निकल कोर्सेज, एग्रीकल्चरल कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज, लॉ, मैनेजमेंट, लैंग्वेज, संस्कृत, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज के कोर्सेज कंडक्ट होते हैं। अब अगर हम इन परसेंटेज पे बात करें, जो मैंने आपको पॉपुलेशन में विलेज की बात की थी, उसके बाद रूरल और अर्बन की बात की थी, अब मैं जो बात कहना चाहता हूं कि अगर हमको अपने रूरल एरिया को डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें इंटरनेट फैसिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। साथ में अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ ऐसे मोबाइल कॉलेज भी स्टार्ट करने पड़ेंगे जो रूरल एरिया पर अपने कंटेंट तैयार करके लोगों के बीच में, रूरल एरिया, रूरल पीपल के बीच में जाकर अपनी बात को रखेंगे। अब इसी परसेंटेज में लेबर रिफॉर्म में जो बात आती है वो ये है कि हमारा रूरल एरिया में जो एक बहुत अच्छी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है वो है मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो माइग्रेंट लेबर प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो रूरल डेवलपमेंट की है उसको काफी हद तक कंट्रोल करता है और इसको एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश भी करता है। जो एक डेटा है जो एमपी गवर्नमेंट से मुझे मिला है वो है लेबर बजट। जो लेबर बजट है 20.50 लेबर लैक्स पर ह्यूमन डेज। एक तो 20 लाख के बराबर, 50 लाख के बराबर, 20.50 लाख के बराबर का ये रोजगार अभी तक जनरेट कर चुका है, और ये 100 दिन का रोजगार की गारंटी भी देता है। और अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन पहले का जो डेटा है वो ये है कि 50 एडिशनल डेज का भी जो उनको
प्रपोजल गया है जो एक्सेप्ट हो गया होगा, और इस तरह से लगभग टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेज में अगर हम कैलकुलेट करें तो 150 डेज का एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया पे केवल मनरेगा के माध्यम से होता है। और अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो लगभग 2,48,00,000 के बराबर अब तक ये एम्प्लॉयमेंट दे चुका है, और इसी दिशा में ये आगे भी है, और इसे आगे कारगर बनाना भी चाहिए, क्योंकि यह एनवायरमेंट पे भी काम करता है, प्रधानमंत्री आवास योजना पे भी काम करता है, नदियों और तालाबों के चौड़ीकरण और स्वच्छता पे भी काम करता है। तो देखा जाए तो ये सब मिलाकर एनवायरमेंट पे भी काम हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज पे भी काम हो रहा है, साथ में लेबर के एम्प्लॉयमेंट पे भी काम हो रहा है। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो जब ये इनकम जनरेट होगी तो निश्चित रूप से दूसरे सेक्टर में भी वो पैसा आएगा, और वो पैसा हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ देगा। अगली स्लाइड में मैंने कोशिश की है कि जो हमारे मैंने यहाँ पर एमएसएमई के बारे में मैं आपकी बात रखना चाह रहा था कि जो हमारे एमएसएमई है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमारी इंडस्ट्री का बैकबोन कहला सकता है। मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ये अर्थव्यवस्था, जितनी हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था का जो कुल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट, उसका लगभग 77% एमएसएमई के माध्यम में इन्वेस्टमेंट है, और ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और अभी जो अपडेट हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को लेके कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंजेस किए हैं। उनमें माइक्रो के लिए लगभग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, साथ में टर्नओवर लगभग 5 करोड़ का, इसके साथ साथ स्मॉल 10 करोड़ के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ में लगभग 50 करोड़ का टर्नओवर, मीडियम टर्म जो है उसमें लगभग 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और साथ में या डॉक्टर दुबे। Due to technical error,
we have to wait for few minutes. Within few minutes, he will come. He will join us. In between of that, I would like to discuss about Research Foundation of India. Research Foundation of India has established in 2004. Start working for social development only. It's handed over to me in 2010. Then start working for research and development. Now on 16 June 2020, we have completed 15 years of their tenure. So on behalf of our Research Foundation of India, I would like to call for membership, free membership. Person who have required to be member of Research Foundation of India, then they can join us and they can visit www.researchfoundationofindia.com. And if a different zone person can be contacted to their president, Professor Jain, Central Board of India, Dr. Agnihotri, South Zone, Dr. Sabyasachi, West Zone, and Dr. Malyamil. East Zone, they can contact to that personality. So thank you very much, and we are waiting for our speaker, Dr. Atul Dubey. So I think due to a network problem, he disconnected over there. So we are waiting for them. Thank you. Thank you. Also, by behalf of Research Foundation of India, we are going to be announced over there free lifetime membership achievement award for organizer Sri S.N. Todi College, Rajasthan. So congratulations to S.N. Todi College to become a lifetime member of Research Foundation of India. Thank you. Thank you and congratulations, Dr. Mahesh Singh Rajput, Dr. Radhe Syamji, and Dr. Krishna Chaharji. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Saurabh Jain sir, for this award, and also Director Sri Dr. Kishan Ji Chahar, Mahesh Ji Rajput. A lot of thanks to RFI India. Welcome, sir. Welcome. Yes, our speaker, Dr. Atul Dubey, sir, is over here. Welcome again, sir. Welcome. Dr. Dubey, I think your mic is mute. Please unmute yourself, Dr. Dubey. माफी चाहूंगा, थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ गया यहाँ पर. As you know very well, everyone know about that platform is an online platform, so nobody can between of the network and technical issues. Welcome again, sir. Welcome. Okay. Continue over there. Thank you. Thank you, sir. So I continue. मैं बात कर रहा था मनरेगा पर कि जो लगभग अभी तक 12 करोड़ के आसपास का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर चुका है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये इसका जीडीपी में जो हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कंट्रीब्यूशन लगभग सर्विस सेक्टर में
सीधा सीधा 24.6% केवल एमएसएमई के माध्यम से चलता है और हो चला गया। साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है एमएसएमई की, उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो लगभग 6.1% के बराबर है। तो इन सारी बातों को देखते हुए अब कुछ बातें मैं कैपिटल फॉर्मेशन की भी बात करना चाहूंगा। कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारे देश में छोटी छोटी बचत, जो अभी इसका एक प्रोसेस है, इसका एक साइकिल है कि जो हम अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करना, ये हमारा रूरल एरिया से शुरू करें तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आता है, अर्बन एरिया से फिर वो कलेक्ट होकर एक बड़ा कैपिटल सोर्स बनता है जो इंडस्ट्री को और अलग तरह के लिए हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिलता है। तो अगर हम इसका रेट निकालें तो सेविंग का जो रेट्स निकलता है वो एक फॉर्मूला है कि टोटल सेविंग इनटू 100 अपॉन करेंट प्राइस, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसके माध्यम से, और दूसरा इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। इन्वेस्टमेंट का जो हम रेट निकाले तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 अपॉन करेंट प्राइस का जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसके बीच से हम उसका परसेंटेज निकालते हैं। और साथ में हमको अगर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को लेके चलना है, तो अभी एमएसएमई के माध्यम से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी डिक्लेरेशन किए थे, उन पॉइंट्स के आधार पर, उन बिंदुओं के आधार पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया, जो वोकल फॉर लोकल, हमारी सोसाइटी में एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड पॉइंट चलता है कि जो महंगा है वो अच्छा है, लेकिन हमने कई बार देखा कि हमारे पास जो अच्छी वस्तुएं हैं वो कई बार सस्ते रूप में भी मिल सकती हैं। अभी आपने देखा होगा पतंजलि के रामदेव जी ने एक बढ़िया दवाई हमारी कोरोना को लेकर निकाला, लेकिन वो चूंकि भारतीय है और उस पर बहुत ज्यादा विज्ञापन और बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिली, तो दूसरे क्षेत्र के लोग उनको डोमिनेट करके हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है, उसके लिए वोकल फॉर लोकल पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। और साथ में SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन छोटे छोटे ग्रुप को अगर हम तैयार करें रूरल एरिया पे, और हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर गेहूं, चावल, या हम अगर बात करें तो फॉरेस्ट हमारा रिसोर्सेज, इन चीजों को बहुतायत मात्रा में होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर सब्जियां बहुत ज्यादा होती हैं, कुछ क्षेत्रों में बांस बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्यों ना इन स्थानों पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रिएट करें, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रिएट करते ही इनको आपस में जोड़ दें। तो इससे फायदा ये होगा कि हमारी इकोनॉमी, जो रूरल इकोनॉमी है, वो ग्रो करेगी और रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एक एग्जांपल भी था कि हमारे पास बहुत पहले हमारे यहाँ घरों में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग हुआ करता था, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग हुआ करता था, और वो कई तरह से हमें हमारे हेल्थ के लिए बड़ा फायदे वाला हुआ करता था। लेकिन अब त्याग दिया, और कुछ अभी राजस्थान और मेरे ख्याल से गुजरात की एक कंपनी है जिन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, बल्कि स्थिति ये आ गई कि उन्होंने बाहर विदेशों में भी उसको बेचना शुरू किया। तो यहाँ पर उन्होंने अपने ही जगहों पर लोकल लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो मैं संक्षिप्त में अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाहता हूं कि हम सर्वे भवन्तु सुखिना
और वसुदेव कुटुंबकम की धारणा पर काम करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि जो विदेश में है कि वो कहता है विदेश पूरा संपूर्ण विश्व एक व्यापार है, जबकि हम भारतीय धारणा में हम इसे अपना परिवार मानते हैं। भारतीय धारणा कहती है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। और एक और धारणा है कि विदेशी धारणा कहती है जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका शोषण किया जाए, जबकि हमारी भारतीय धारणा कहती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन किया जाए और साथ में कुछ मात्रा हम ले तो कुछ मात्रा उन पर्यावरण पे भी दे। मतलब अगर हम एक वृक्ष से कुछ चीजें लेते हैं तो एक वृक्ष लगाएं भी। इस तरह की धारणा पे काम करते हैं। और मैं हमेशा अपने एक मंच पे कुछ बातें रखा, आज भी एक मंच सौरभ जी के माध्यम से मुझे मिला, तो मैं आखिरी अंतिम बात जो कहना चाहता हूं कि जो रूरल इकोनॉमी है, अगर हम ग्रामीण परिवेश में जाएं तो देखते हैं कि गांव में घर घर में वो तेंदू पत्ता तोड़कर बीड़ी बनाने का काम होता है, थोड़े बहुत बाड़ी और लगाकर अपनी इकोनॉमी को चलाने का काम करता है। मेरा इस मंच के माध्यम से एक कल्पना है, भारत सरकार को एक सुझाव है कि अगर हम इंटरनेट सुविधाओं को अच्छा करें और इस इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से ऐसी स्किल डेवलपमेंट करें कि हमारे गांव के हर घर में लैपटॉप बने, मोबाइल बने और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बने, तो निश्चित रूप से चीन और बाकी विश्व को हम निर्यात कर सकेंगे और हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर सकेंगे। और आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद, साथ में इतनी देर तक मुझे सुना इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में कृष्ण चहार जी जो चेयरमैन हैं और आदरणीय महेश जी जो प्राचार्य हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी बातों को यही विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम। Thank you, Dr. Gupta. Thank you, Dr. Dubey. Dr. Atul Dubey is a renowned faculty and having 26-year experience in teaching. Right now, he is a EC member of Rani Durgavati University, Jabalpur, Madhya Pradesh. And Dr. Dubey is having the knowledge related to means if we talking about Dr. Dubey, he having the experience of marketing, HR and economic crisis issues related to management. So thank you very much, Dr. Atul Dubey ji, to be part of Research Foundation of India. And Research Foundation of India is going to be announced over there free lifetime membership to our honorable speaker, Dr. Atul Dubey ji. So congratulations, Dr. Dubey, to be part of Research Foundation of India as a lifetime membership. Thank you very much. Now I would like to call Dr. Radheshyam ji Godara for vote of thanks this particular webinar. Thank you. थैंक यू डॉक्टर सौरभ जैन सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अतुल दुबे जी को, जो हमें ये इतनी जो इंफॉर्मेटिव सूचनाएं दी। सर ने बात की कि भी मोबाइल लैपटॉप है, मोबाइल है, लैपटॉप है हर घर के अंदर, यानी स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, लोकल फॉर वोकल जो बात की गई उसके बारे में। और दूसरा मैं अभी एक राजस्थान का भी एग्जांपल बताता हूँ। राजस्थान के एक अंदर गांव है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिपलांत्री। उस पिपलांत्री गांव के अंदर हर घर के अंदर एलोवेरा और आंवले के प्रोडक्ट बनते हैं और वहां से एक्सपोर्ट होते हैं। तो ऑर्गेनिक खाना है वहाँ का, और वो एक मॉडल गांव है राजसमंद का। और दूसरा सर ने बताया कि भी हमें जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, आज का जो क्राइसिस चल रहा है इसे मोटिवेट करना। और दूसरा क्या है कि आज की जो आने वाली जनरेशन है जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इनके अंदर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। मैंने देखा कि जो नारियल का कवर होता है, बांस होता है, उससे जो खिलौने बनाते हैं,
बहुत अच्छे खिलौने बनाते हैं, की रिंग बनाते हैं उनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। जो ट्राइबल एरिया की जो गर्ल्स हैं, छोटी-छोटी गर्ल्स हैं, वो वहाँ से तेंदूपत्ता इकट्ठा करके और उसके द्वारा जो अपनी इनकम का सोर्स है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। और दूसरा, मैं अतुल दुबे सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में थैंक यू सर। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, जैन साहब और डॉक्टर सौरभ जैन, मिस्टर जोगराज, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और साथ में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और स्पेशली thanks to Dr. Saurabh Jain to providing a life membership to SN2D PG College, Budapest. Thank you, sir, for your knowledge and for your time. We are always thankful to you. Thank you, sir, to all participants. Thank you, Godara ji. Also, I have required to discuss over there. As we know very well, today we are going to be organized webinar on global crisis. As we know very well, all the needy person, poor person is facing that problem also. So Research Foundation of India has already announced on 25th March 2020, हम है इंसान मुहिम. Under हम है इंसान मुहिम, Research Foundation of India is helping such people who have required the help in financial issues, in different, if we talking about meal, whatever thing has required for needy people. So Research Foundation of India is helping for these type of such a type of people under Hum Hai Insan Muhim. So thank you very much, our honorable speaker, Dr. Atul Dubey sir, respected participants, respected speakers, director, chairman, organizers, core committee members. Thank you very much. Again, thank you very much, Dr. Atul Dubey ji. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now participants can leave from the session. Thank you. Over to you, Dr. Chandrakanta. सुभाष जी क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? सुभाष जी, सुभाष जी, राजी तो हो गया? Please exit the webinar, sir.
किती विचारायचं भाजी आज आहे विचार की आज आहे कलम और कौन सा काटा हो गया अरे 3 बच्चे हैं सगळे मैं बच रहे हैं बस कंप्लीट है Dear participant, please remove your side.